Hello, students. Today we are going to discuss chapter number 1 of class 6. The name of the chapter is Knowing Our Numbers. Okay, in this chapter, in this video, today we are going to cover these 4 topics. The first one is definition and introduction of numbers. The second is comparing of number. Comparing of number, it means what? अगर आपके पास कोई दो चीज़ है तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने मार्क्स अपने फ्रेंड के साथ कंपेयर करते हो, राइट. सो कंपेयरिंग में आपको एक ही आंसर मिलेगा, या तो ये नंबर बड़ा होगा या तो ये नंबर छोटा होगा, राइट. सच काइंड ऑफ थिंग इज इंक्लूडेड इन द कंपेयरिंग ऑफ नंबर. The third topic is ascending and descending order. This topic you have already studied in the previous standard. Ascending order means what? Smallest to biggest. मतलब छोटे नंबर से बड़े नंबर तक आपको लिखना है, right? That is called ascending order. And descending order, it means what? Biggest to smallest. It means बड़े से छोटे नंबर तक लिखना है, right? And in the fourth topic, that is formation of 4-digit number, right? So before we are going to start, the first one is definition and introduction to numbers. Now numbers means what? कहाँ पे यूज़ होते हैं numbers? Numbers is generally used for counting some objects. For example, आपकी क्लासरूम में कितनी बेंचेस है तो आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 up to so on, right? How many number of students are there in your classroom, right? जब आपके क्लास टीचर अटेंडेंस लेने आते हैं क्लास के अंदर, तब वो क्या करते हैं? रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, एंड एट द एंड he or she will make the total number of present students, number of absent students, and total of the students, right? Clear? So numbers are generally used to count the objects, and it is also used for the comparing the objects. So these are the basic uses of the numbers, right? नंबर्स का दूसरा यूज़ क्या होता है? आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड के अंदर भी किया था. एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो. So these are the some uses of the numbers, right? There are different types of numbers. Natural number is there, whole number is there. In 6th standard you will study integer chapter, right? So natural number, as you all know that, what do you mean by natural number? The natural number, it means which start from the 1, right? So ये सारे numbers के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. Clear है? So this is what definition and some introduction about numbers. So generally numbers are used for counting and comparing the objects. Clear? Now the second topic is comparing the numbers. Comparing the numbers. अब नंबर को कैसे कंपेयर करोगे? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दो नंबर्स दिए हैं. कोई भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए दो चीज़ चाहिए, दो नंबर्स चाहिए, तभी आप उसको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये नंबर है 92 एंड 64. नाउ कंपेयर दिस टू नंबर. तो जब भी आप कंपेयर करोगे तो आपको एक ही आंसर मिलेगा कि कौन सा नंबर किस नंबर से बड़ा है या तो कौन सा नंबर छोटा है, ठीक है. अब हाउ यू कैन कंपेयर द नंबर्स? सो टू कंपेयर द नंबर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स. यहाँ पे आप काउंट करो. चलो, ये जो नंबर है 92, उसके अंदर कितने डिजिट्स है? 1 and 2. सो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 2 डिजिट्स आर देयर. क्लियर? Same way, count the 60 digits of this number 64. So in this number there is 2 digits, right? इसमें भी 2 digits है, इसमें भी 2 digits है. Clear? चलो, दोनों सेम नंबर ऑफ डिजिट्स कंटेन करते हैं. अब आपको क्या करना है? पहला लेफ्ट साइड पे जो पहला डिजिट है उसको, और ये नंबर का लेफ़्ट साइड पे जो पहला डिजिट है उसको कंपेयर करना है. चलो, इसका पहला डिजिट कौन सा है? 9, और इसका पहला डिजिट कौन सा है? 6, राइट. सो कंपेयर दिस 9 and 6. एज यू नो दैट 9 इज़ बिगर देन 6. 9 क्या है? बड़ा है 6 से. तो इट मीन्स दैट
this number 92 is bigger than or we can say greater than 64. So क्या लिखेंगे here 92 is bigger than 64. Clear? So in this way you can compare the numbers. Let us take another example. For example, 302 and 5482. सपोज अब आप यहाँ पे कैसे कंपेयर करोगे? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि अगर नंबर्स को कंपेयर करना है तो आपको उसके डिजिट्स को काउंट करना है. चलो ये जो नंबर है उसके डिजिट्स काउंट करो 1, 2 and 3. सो देर आर 3 डिजिट्स इन दिस नंबर. क्लियर है? ओके. Now count the number of digits of this number, that is 1, 2, 3 and 4. तो अगर कोई भी नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स, ये दोनों नंबर में किसके डिजिट्स ज़्यादा है, ये नंबर के डिजिट ज़्यादा है, तो सिंपली लिख देना है कि ये नंबर जो है वो इससे क्या होगा, बड़ा होगा. राइट? तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, 5482 इज़ ग्रेटर दैन 302. क्लियर है? जिस नंबर में डिजिट्स ज़्यादा हो डायरेक्टली हम लिख देंगे कि वो नंबर बड़ा है, और अगर डिजिट सेम हो तो फिर हमें एक एक करके चेक करना है. चेक स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, लेफ़्ट साइड से. क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए. चलो फॉर एग्ज़ाम्पल 4456, 4432, 5457. Okay, right? So there are 3 numbers are there. 3 numbers are given. Now first of all क्या करेंगे हम, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स. चलो 1, 2, 3, 4. तो इसके कितने डिजिट्स हो गए, 4 हो गए भाई. चलो सेम वे इसके भी काउंट करेंगे हम, तो क्या हो जाएंगे 1, 2, 3, 4. तो इसके भी कितने डिजिट्स हो गए, 4 डिजिट्स हो गए. सेम वे नाउ काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ दिस नंबर, दैट इज़ 1, 2, 3 एंड 4. ओके. सो आप देख सकते हो कि सभी नंबर्स के डिजिट्स क्या है, सेम है. ठीक है. अब जब ऐसा सिनारियो हो, ऐसा केस हो आपके पास, तो अब हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड से फर्स्ट डिजिट को चेक करेंगे. इसका फर्स्ट डिजिट क्या है, 4 है. ये नंबर का फर्स्ट डिजिट क्या है, 4 है. और ये नंबर का फर्स्ट डिजिट क्या है, 5 है. राइट? सो 5 और 4 में कौन बड़ा कहलाएगा भाई, 5 नंबर बड़ा कहलाएगा. सो दिस नंबर इज़ ग्रेटेस्ट नंबर अमॉन्ग द गिवन 3 नंबर्स. तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर 5457 इज़ ग्रेटेस्ट नंबर. आई होप आपको पता चल गया होगा कि हाउ टू कंपेयर द नंबर्स और हाउ वी कैन से दैट वेदर द गिवन नंबर इज़ ग्रेटर देन और स्मॉलर देन. क्लियर? तो कंपेयर कैसे करते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नाउ लेट अस टेक सम अनदर एग्जांपल, दैट इज क्वेश्चन इज फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर. आपको क्या करना है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है. सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ 4536, 4892, 4370, 4452. These 4 numbers are given and among this you have to find greatest number, मतलब सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है and सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है. राइट? So in the solution what we are going to write, greatest number. चलो ग्रेटेस्ट नंबर अभी हमने आगे डिस्कस किया कि हाउ वी कैन कंपेयर दी नंबर्स. तो नंबर्स कंपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, बोला था मैंने कि डिजिट्स काउंट करो. तो इसके डिजिट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4. इसके 4 डिजिट्स है, इसके भी 4 डिजिट्स है, इसके भी 4 डिजिट्स है और इसके भी 4 डिजिट्स है. तो सभी नंबर्स के डिजिट्स कितने रहते हैं, सेम. क्लियर? अब जब सेम होता है तब मैंने आपको बताया था क्या करोगे, लेफ़्ट साइड से शुरू करेंगे हम.
तो लेफ्ट साइड से डिजिट्स को कंपेयर करना शुरू करो। तो इसका पहला डिजिट क्या है 4, इसका फर्स्ट डिजिट 4, इसका भी फर्स्ट डिजिट 4, इसका भी फर्स्ट डिजिट 4। चलो सभी नंबर्स का फर्स्ट डिजिट 4, दैट इज़ सेम, राइट। अब सेकेंड डिजिट कंपेयर करेंगे। चलो सेकेंड डिजिट क्या है इसका 5 है, इसका सेकेंड डिजिट क्या है 8। देखो इसका फर्स्ट सेकेंड डिजिट क्या है 5, इसका सेकेंड डिजिट क्या है 8, इसका सेकेंड डिजिट 3, इसका सेकेंड डिजिट 4। क्लियर है। तो आप देख सकते हो कि सेकेंड डिजिट, चारों नंबर में सेकेंड डिजिट किसका बड़ा है, ये नंबर का बड़ा है, राइट। सो दिस वन इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो विच वन इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, 4892। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। क्लियर है। ओके, नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट नंबर, राइट। तो क्या फाइंड करेंगे, इधर लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर। चलो स्मॉलेस्ट नंबर में भी सेम चीज़, सबसे छोटा नंबर चेक करना है। चलो हमने ऑलरेडी चेक कर दिया कि सबके डिजिट सेम है। चलो फर्स्ट डिजिट सबका सेम है, वो भी हमने चेक कर लिया है। अब आपको स्मॉलेस्ट डिजिट चेक करना है। देखो इसका सेकंड डिजिट क्या है 5, इसका सेकंड डिजिट 8, इसका सेकंड डिजिट 3, इसका सेकंड डिजिट 4। तो सभी नंबर्स में सेकंड डिजिट किसका कम है, दिस वन। सो योर आंसर विल बी 4370। दिस इज़ योर आंसर। क्लियर। आई होप आपको पता चल गया होगा कि हाउ वी कैन फाइंड ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर among the given numbers. Let's take another example, that is question number B, 15,623 comma 15,073 comma 15,189 comma 15,800. Now first of all क्या लिख देंगे, greatest number, और दूसरा क्या लिखेंगे, smallest number। चलो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि डिजिट्स काउंट करो। चलो तो नंबर के डिजिट्स काउंट करेंगे तो इसके कितने डिजिट्स होंगे, हो जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे भी 1 2 3 4 एंड 5, सेम वे 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5। सो सभी नंबर्स के कितने डिजिट्स है, 5 डिजिट्स है। क्लियर। चलो अगर सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होते तो फिर मैंने आपको नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था कि पहला डिजिट चेक करना है। तो इसका फर्स्ट डिजिट 1, इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1। सभी नंबर्स में फर्स्ट डिजिट क्या है, सेम। चलो फर्स्ट डिजिट सेम हो तो फिर कौन सा डिजिट चेक करेंगे, सेकेंड डिजिट। चलो सेकेंड डिजिट 5 5 5 5, सेकेंड डिजिट भी सेम है भाई। चलो सेकेंड डिजिट भी सेम हो तो कौन सा डिजिट चेक करेंगे, थर्ड डिजिट। चलो थर्ड डिजिट कौन सा है, 6, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे 8। तो इन सब में थर्ड डिजिट कौन सा बड़ा है, ये वाला। सो योर ग्रेटेस्ट नंबर इज़ 15,800। क्लियर। एंड द स्मॉलेस्ट डिजिट इज़ व्हाट, सभी में पहले दो डिजिट तो सेम ही थे, थर्ड डिजिट में सबसे छोटा चेक कर लो, इसका 6 है, इसका क्या है 0। सो दिस इज़ योर स्मॉलेस्ट नंबर, दैट इज़ 15,073। क्लियर है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि हाउ टू कंपेयर दी नंबर्स एंड हाउ वी कैन फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियर। थर्ड टॉपिक इज ascending and descending order. Now the ascending means what? Ascending means smallest to biggest. Ascending means what? Smallest to biggest, मतलब छोटे नंबर से बड़े नंबर तक लिखना है आपको। और descending means biggest to smallest. Clear? Ascending means छोटे से बड़ा और descending means बड़े से छोटा। So इस कंसेप्ट में भी आगे वाला कंसेप्ट यूज़ होगा कंपेयरिंग नंबर्स वाला, राइट। तो उसमें मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी कि हाउ टू कंपेयर द नंबर्स, उसी तरीके से आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर समझने में आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, लेट अस टेक एग्जांपल एंड try to understand this concept. What do you mean by ascending and what do you mean by descending order? The first is 847, comma 9754
कॉमा 8320 कॉमा 571. Suppose these are the numbers and you have to arrange this numbers into ascending order. आपको ये numbers को ascending order में arrange करना है. Which order? Ascending order. It means smallest to biggest. तो आंसर में क्या लिखोगे आप? मैंने आगे अभी आपको समझाया कि कंपेयरिंग नंबर्स के अंदर तो असेंडिंग मतलब क्या, छोटे से बड़ा. तो इसमें से आपको सबसे छोटा नंबर फाइंड करना पड़ेगा पहले. तो हाउ वी कैन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर. सो पहले हम क्या करेंगे, सबके डिजिट्स गिनेंगे. चलो, तो इसके कितने डिजिट्स है? 3, 1 2 3. चलो यहाँ पे नीचे लिख देंगे इसके कितने डिजिट्स? 3. यहाँ पे इसके कितने डिजिट्स है? 4 डिजिट्स. इसके कितने डिजिट्स है? 4. और इसके 3. क्लियर? ये सब आपको करना नहीं, ये सिर्फ समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, आपको डायरेक्टली आंसर देना है. ओके, चलो ये दोनों के 3 डिजिट्स है, मतलब ये दोनों नंबर्स छोटे हुए इसकी कंपेयर में. ओके, अब इन दोनों में आप देखो, फर्स्ट डिजिट क्या है इसका? 8 और इसका फर्स्ट डिजिट क्या है? 5. सो इन दोनों में कौन सा छोटा? ये वाला. तो पहले हम क्या लिखेंगे? 571 कॉमा फिर क्या आएगा? 847. तो ये 2-3 डिजिट वाले नंबर्स हो गए. उसके बाद ये दो जो नंबर है उसमें कितने कितने डिजिट्स है? 4 डिजिट्स है भाई. तो अब क्या करेंगे? फर्स्ट डिजिट चेक करेंगे. चलो, इसका फर्स्ट डिजिट क्या है? 9 और इसका फर्स्ट डिजिट क्या है? 8. तो इन दोनों में कौन सा नंबर छोटा? ये वाला. तो अब क्या लिखेंगे? 8320 एंड द लास्ट इज़ 9754. सो इन दिस वे you can arrange the given numbers into ascending order. Clear? I hope आपको समझ में आ गया होगा. Let us take some another example. That is 9801 comma 27751 comma 36501 comma 38,802. Okay, suppose these 4 numbers are given and you have to arrange these numbers into ascending order. Okay, ascending order में मैंने अभी आपको प्रीवियस सम में ही बताया कि पहले नंबर ऑफ डिजिट्स गिन लो. इसके कितने डिजिट्स है? 4. इसके कितने डिजिट्स है? 5. इसके कितने डिजिट्स है? 5. और इसके भी 5. क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जिसके डिजिट्स कम है वो छोटा नंबर कहलाएगा. तो आंसर इज़ व्हाट? 9801 कॉमा. इसके बाद अब इन 3 में 5 डिजिट है. तो सबसे पहले पहला वाला डिजिट चेक करेंगे. इसका 2, इसका 3 और इसका 3. तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है? 2. तो वो वाला लिख देंगे. तो 27,751. क्लियर? अब ये दोनों में 5 डिजिट है और पहला नंबर क्या है? सेम है. तो दूसरा डिजिट चेक करो. इसका दूसरा डिजिट क्या है? 6 है और इसका दूसरा डिजिट 8 है. तो इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा कहलाएगा? ये वाला. सो 36,501 कॉमा 38,802. ये नंबर्स ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही दिए थे. ठीक है. सो आई होप आपको असेंडिंग ऑर्डर में पता चल गया होगा कि हाउ टू अरेंज द गिवन नंबर्स इनटू असेंडिंग ऑर्डर. राइट नाउ you have to arrange the given number into descending order. So let us take an example and try to understand about descending order. चलो, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे? सपोज आपको नंबर दिया है 5000 कॉमा 7000 कॉमा 7,861 comma 85,400. Right, suppose these are the numbers are and you have to arrange this number into descending order. So what do you mean by descending order? Biggest to smallest. मतलब पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद लास्ट में जो सबसे छोटा होगा वो आएगा. तो चलो यहाँ पे सेम प्रोसीजर. अब यहाँ पे इसमें हम स्मॉलेस्ट फाइंड करते थे, इसमें हम सबसे बड़ा नंबर पहले लिखेंगे. तो इसके डिजिट्स गिन लो कितने हैं? 4. इसके भी 4, इसके भी
4, यहाँ पे कितने डिजिट्स है 5। तो सबसे पहले तो 5 डिजिट्स है, मतलब ये वाला नंबर बड़ा, तो आंसर में क्या लिख देंगे 85,400 कॉमा। अब ये 3 नंबर है जिसके 4 डिजिट्स है, तो पहला डिजिट कंपेयर करो, क्या है इसका 5, इसका 7 और इसका 7। तो ये 2 नंबर में पहला डिजिट क्या आता है सेम, तो दूसरा डिजिट चेक करेंगे, इसका 0 है और इसका क्या है 8। तो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा कहलाएगा, दिस वन, दैट इज़ 7,861, देन आफ्टर 7,000, then last is 5,000. So in this way you can arrange the numbers into descending order. I hope आपको ascending order and descending order समझ में आ गया होगा. Next, fourth topic is formation of 4-digit number. Formation of 4-digit number means आपको नंबर एक बनाना है जिसमें कितने डिजिट्स होंगे भाई, 4 डिजिट्स होंगे. See, फर्स्ट क्वेश्चन इज मेक 4 डिजिट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर. आपको 4 डिजिट का सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बनाना है यूजिंग दिस डिजिट्स. ये डिजिट्स का यूज़ करके आपको सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर बनाना है. यहाँ पे कंडीशन है कि एक डिजिट्स है वो दूसरी बार रिपीट होना चाहिए नहीं, कोई भी डिजिट्स दोबारा रिपीट होना चाहिए नहीं, राइट. यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा विदाउट रिपीटेशन, राइट. रिपीटेशन किए बिना आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इधर, ग्रेटेस्ट, कितने डिजिट बनाना है 4 डिजिट, तो हम एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम 4 डिजिट की जगह रखेंगे 1 2 3 4, क्लियर. और यहाँ पे क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर. तो सेम वे 1 2 3 एंड 4, क्लियर. आपको ये डिजिट्स यूज़ करने हैं. कौन से डिजिट्स दिए आपको, 2, 8, 7, 4. ये डिजिट्स का यूज़ करके आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है. तो बहुत इजी है, ध्यान दो. ग्रेटेस्ट नंबर अगर बनाना है तो सब इन 4 डिजिट में सबसे बड़ा कौन सा है 8. तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे लेफ़्ट साइड से. तो इधर लिखेंगे 8, उसके बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा 7, उसके बाद बड़ा नंबर कौन सा 4 एंड देन आफ्टर 2. सो व्हाट इज़ योर ग्रेटेस्ट नंबर, 8,742, क्लियर. सो इन दिस वे यू कैन फॉर्म ग्रेटेस्ट नंबर. नाउ अभी आपको क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर. तो स्मॉलेस्ट नंबर में इन 4 डिजिट के अंदर सबसे छोटा नंबर है वो पहले लिखेंगे. So that is 2, clear. Then after 4, then after 7 and then after 8, clear. So इस तरीके से आप जो डिजिट्स दिए हैं उसका यूज़ करके स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट बना सकते हो, राइट. लेट अस टेक वन अनदर एग्जांपल, दैट इज यूज 4 7 5 0. ये डिजिट्स का यूज़ करके आपको ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बनाना है. तो इधर क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर एंड इधर स्मॉलेस्ट नंबर. चलो 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो 4 बॉक्स कर दे. ओके, चलो ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है. क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट. तो ग्रेटेस्ट में इन चारों में सबसे बड़ा कौन सा 7. तो पहले क्या लिखेंगे 7, उसके बाद 5, उसके बाद कौन बड़ा 4, उसके बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा 0. सो दिस इज़ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है. अब स्मॉलेस्ट बनाना है तो याद रखना जब भी 0 वाले क्वेश्चन आते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, यहाँ पे ऐसा लिख देंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा इसमें 0, फिर आएगा 4, फिर 5 7. अगर आपने स्टूडेंट्स ऐसे नंबर बनाया है तो ये आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग. क्यों, क्योंकि आगे 0 है तो उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है. इट मीन्स ये कितने डिजिट नंबर गिने जाएगा, 3 डिजिट ही गिना जाएगा. लेकिन आपको कितने डिजिट वाला नंबर बनाना है, 4 डिजिट. तो कभी भी हम 0 स्टार्टिंग में लगाएंगे नहीं. तो ये नंबर कैसे बनेगा आपका, इन सब में सबसे छोटा कौन सा 4, उसके बाद क्या लगाएंगे 0, देन आफ्टर 5, then after 7. So this is the right method to form the smallest number. अगर
आपको ज़ीरो दिया है डिजिट्स के अंदर। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि हाउ टू फॉर्म्स ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट्स। यहाँ पे एक कंडीशन थी कि विदाउट रिपीटेशन, मतलब कोई भी डिजिट्स है वो दोबारा रिपीट होता नहीं है। क्लियर? आई होप आपको ये पता चल गया होगा। Now next example is make the smallest and greatest 4 digit number by using any one digit twice। मतलब आपको ये numbers दिए हैं, 3 digits are given 3, 8 and 7। Using this 3 digits you have to form, हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 4 डिजिट का नंबर। जबकि प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर क्या दिया था? 4 डिजिट दिए थे, इसलिए कोई भी डिजिट दोबारा रिपीट होता नहीं था। लेकिन यहाँ पे कितने डिजिट्स दिए हैं आपको? 3 डिजिट्स दिए हैं, तो एक डिजिट जो है वो 2 बार रिपीट कर सकते हो, ऐसी कंडीशन यहाँ पे दी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? आपको स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। चलो, तो 4 डिजिट नंबर बनाना है तो बॉक्स बना देंगे हम 4, यहाँ पे भी 4। चलो, स्मॉलेस्ट बनाना है तो स्मॉलेस्ट के लिए इन 3 में सबसे छोटा कौन सा है? 3। सो उसको 2 बार लिख देने का इधर, 3। उसके बाद 7 एंड देन 8। यहाँ पे कंडीशन क्या दी थी? यू हैव टू यूज़ एनी वन डिजिट ट्वाइस, मतलब इन 3 में से कोई भी एक ही डिजिट को आप 2 बार यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 2 बार 3 और 2 बार 7 लगा दिया। क्लियर? नहीं तो ये नंबर इससे भी छोटा हो सकता था, 3, 7, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते। ठीक है, एक डिजिट को ही 2 बार यूज़ कर सकते हैं, दूसरे कोई भी डिजिट दोबारा यूज़ होगा नहीं। ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। सो इन 3 में सबसे बड़ा कौन सा है? 8, तो उसको हम सिर्फ 2 बार लिख देंगे, देन आफ्टर 7 एंड देन आफ्टर 3, राइट? तो इन दिस वे यू कैन फॉर्म 4 डिजिट नंबर। लेट अस टेक one another example, that is 8, 5 and 1। चलो, which is the smallest number and which is the greatest number। चलो, इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा? 1, तो 2 बार क्या लिख देंगे? 1, उसके बाद 5 एंड देन आफ्टर 8। नाउ ग्रेटेस्ट नंबर, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा? 8, तो जो बड़ा है उसको 2 बार लिख दो, देन आफ्टर 5 देन आफ्टर 1। सो इन दिस वे यू कैन फॉर्म द 4 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन एंड विथ रिपीटेशन। आई होप आपको ये जो 4 टॉपिक्स डिस्कस किए वो समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड share this video with your friends and relatives. Thank you.